Hello everyone. As we have already started our topic digestion in human beings, in the previous video we have discussed digestion in mouth. Now we started from food pipe. In this video we study about the digestion in food pipe, stomach, small intestine, large intestine. Okay, in this video we complete the digestion in human beings. Okay, now we start. The food pipe. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. You can see in the picture 2.2. This is the picture or the figure 2.2 human digestive system. You can see that first the food passes through the mouth. There is buccal cavity, then salivary gland. Salivary gland secretes saliva and it mixes with the food, and then it is easy to swallow the food, and then the food passes through the esophagus. You can see the food pipe. Okay, so now we just discuss about the esophagus or the food pipe. Okay, now we start. Uh, the swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Okay, so this food pipe passes through the neck and the chest. Here is a box. Pahili wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. This is the question. Just Pahili wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. Okay, I will tell the answer. देखिए, when we eat food, then walls of our digestive system move and pushing the food down towards our stomach. However, there are some factors which can make the food come back. Now the question is, what are the factors? First factor is bacterial infection. Sometimes we get bacterial infection in our food pipe, in our food pipe, in our esophagus, also in our stomach. Then when we get bacterial infection, then our body wants to get rid of the bacteria. It means through vomiting we can get the rid of bacteria, and through vomiting we just push back the food. Okay, the second factor will be weak stomach. For some people they have weak stomach and there is the mixing of some type of food. When these types of food mix, then it cause vomiting. Okay, so we observe, and sometimes you observe the abundant production of saliva. जब हमें वोमिटिंग होता है तो हमारे माउथ में सलाइवा का अमाउंट भी ज़्यादा सीक्रेट होता है. वाई? बिकॉज it is supposed to protect our teeth from the digestive acids. Okay, again I tell, Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. देखिए, because of bacterial infection हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है and our body want to get rid of these bacteria, and then we just do vomiting. Okay, then this is the topic. Then food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Means first the food passes from mouth to food pipe, and then this this movement takes place throughout the alimentary canal. देखिए, what is the alimentary canal? मैंने आपको बताया था, I have already told you that कि एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. ओके, तो माउथ से फूड जो है वो आपका फूड पाइप में पास होता है, एंड देन फूड पाइप से वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू देन इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. So why the food is not accepted by our stomach? Because of some bacterial infection, and we do vomiting. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. तो क्या reason होगा? First reason bacterial infection, and second reason
weak stomach, and third reason excessive acid in our stomach. Now the food passes from food pipe to the stomach. The stomach is a thick walled bag, or stomach में the food remains almost 4 hours in the stomach so that it is digested in the stomach. Its shape is like a flattened U, and it is the widest part of the alimentary canal. ओके तो स्टमक का जो शेप होगा वो यू शेप होगा और सबसे वाइडेस्ट पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का. आप देख सकते हो इसका जो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ. दिस इज द स्टमक, फूड, एलिमेंट्री कैनाल एंड देन स्टमक. स्टमक इज यू शेप, ऑलमोस्ट द यू शेप, and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. Means food stomach में from where it gets the food? It gets the food from the food pipe, and then from stomach the food passes into the small intestine. Okay, the inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. क्या क्या इनका फंक्शन होगा? देखिए म्यूकस जो है वो स्टमक से सीक्रेट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक से सीक्रेट होगा और सम डाइजेस्टिव जूसेस. तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपलर पार्टिकल्स. मींस दे हेल्प इन द डाइजेशन. और जो आपका म्यूकस होगा, म्यूकस का जो फंक्शन क्या होगा? देखिए म्यूकस जो है एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह होगा और इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ये उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको थोड़ा लुब्रिकेट करेगा लाइनिंग ऑफ स्टमक को, सो दैट द फूड इजीली पासिस फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द एसिड, फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl and digestive juices, the function of acid is to digest the food, and the other function, the acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic. Okay, the digestive juices break down the proteins into the simpler substances. Again I repeat, stomach is U shape, widest part होगा आपका, म्यूकस सीक्रेट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होगा एंड डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. Hydrochloric acid is also help in digestion and it also kills the bacteria, and mucus protect the lining of stomach. And because of mucus, because of secretion of mucus, the food is easily passes from stomach to the small intestine. Now the next topic is the next part is small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7 meter or 7.5 meter long. Means 7 meter बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी हाइट से भी ज़्यादा होगा. It is longer than our height. Okay, but it is in the coil form. वो एक coil की तरह होगी आपकी बॉडी में. It receives secretion from the liver. Means small intestine को जो लीवर से जो हार्मोन्स वगैरह हैं उसको वो प्रोवाइड होंगे, और पैंक्रियाज से. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर और पैंक्रियाज, देयर आर 2 ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स हैं दे आल्सो सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. मतलब हमारा जो स्टमक है उसके अपर पार्ट में लीवर सिचुएटेड होगा, and it is the largest gland in the body. You should remember this point. It is the largest gland in the body. और लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होगा, that is stored in the gall bladder. फिर अगेन मैं आपको बताता हूँ, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होगा, बाइल जूस गाल ब्लेडर में जाके स्टोर होगा, और इसका सीक्रेशन जाके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल जूस वो डाइजेशन में हेल्प करेगा. ओके, द बाइल प्लेज एन, और डाइजेशन किसका करेगा? डाइजेशन ऑफ फैट. मींस जो बाइल जूस है वो फैट का डाइजेशन करेगा. द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. मीन्स ये फैट को, डाइजेशन ऑफ फैट मीन्स इट ब्रेक्स द फैट इनटू द सिंपलर substances, simpler particles. The pancreas is a larger cream colored gland located just below the stomach. पैंक्रियाज जो है वो स्टमक के बिलो होगी, और लीवर जो है वो एब्डोमेन से थोड़ा ऊपर होगा. द पैंक्रियाटिक जूसेज
acts on carbohydrates and proteins and changes into them into simpler forms. मीन पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन होगा, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ऑल्सो. ध्यान रखिए, स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन होगा और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन का डाइजेशन होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, स्टमक जो है इसका भी एक स्टोरी है कि आपको स्टमक जो है वो किस तरह से वो हम डिस्कवर हुआ था. तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी कंप्लीट द स्मॉल इंटेस्टाइन. दी partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of component of food. Okay, partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. पार्सली अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा और कुछ जो फूड का जो पार्ट है वो आपका लोअर इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा. द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा. मीन्स कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा आपका माउथ से. And it digests fat into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid. Means complete digestion takes place in the small intestine. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको लीवर ग्लैंड होगी, पैंक्रियाज ग्लैंड होगी. मीन्स वहाँ से सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलेगा. लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होगा. बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड पैंक्रियाज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. नाउ अबाउट द स्टमक. The working of the stomach was discovered by a strange accident in 1822. In 1822, a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. आप देख सकते हो, there is a picture. यहाँ पर इसको किसी ने शूट किया और he was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. मतलब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, विलियम बीमॉन्ट. द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बच गया, ठीक है. बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली. उसका स्टमक का जो होल है वो उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया. ही वॉज अनेबल टू फिल अप द होल ऑफ हिज स्टमक. Beaumont took it as great opportunity to see the inside of the stomach because वहाँ पे होल था स्टमक में, तो वो धीरे धीरे उस होल से उसके स्टमक को ऑब्जर्व करने लगा. एंड ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस. Beaumont found that the stomach was churning food. मीन्स जो स्टमक है वो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा है. मीन्स उनको तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है. Its was secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. Means when मैंने पहले भी बताया था आपको, this is already I explain. In the stomach there is in the stomach food is remain for 4 hours. 4 आवर्स में क्या होगा? फूड का डाइजेशन हो जाएगा. मीन्स प्रोटीन का थोड़ा डाइजेशन होगा, उसके बाद ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. तो दिस इज हाउ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड. ओके, देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस. आगे मैं समझाता हूँ आपको. आपका माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, देन फूड पाइप में फूड पासिस एंड देन फ्रॉम फूड पाइप इनटू द स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. एंड देन द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. और जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल में एंटर करेगा, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. मीन्स ब्लड वेसल ने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोस. दीज आर कॉल्ड विली. मीन्स इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर
कॉल्ड विली, और इनका फंक्शन क्या होगा? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्वेश्चन भी था, कैन यू गैस व्हाट इज द रोल ऑफ विली? कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो जो विली होगा वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है व्हेन एंड इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस, विली का सिंगुलर है, ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। मीन्स इन विलीज में भी ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The absorbed substances are transported through the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body, and this is called assimilation. Means from the blood vessels the food transported to different parts of the body, and this is the assimilation. This is what we called assimilation. इन दी सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन। देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस आए हैं आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग फूड, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल, दिस इज एब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन द फूड इज पास फ्रॉम blood vessel to different parts of the body, then it is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. एंड एनर्जी इज रिलीज। मीन्स आपका जो फूड है वो आपने डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट का मतलब आपने माउथ में विद द हेल्प ऑफ टीथ यू ब्रेक डाउन द फूड, और उसके बाद स्टमक में भी कुछ एसिड्स हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके भी फूड डाइजेस्ट हुआ। फूड के डाइजेस्ट होने के बाद व्हेन वी ब्रीथ, तो ब्रीथ करने पर ऑक्सीजन गैस उसको बर्न कर देती है, और बर्न करने के बाद उसके जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज and water, we release carbon dioxide and water also, है ना, water in the form of water vapors. And energy we used, the food that remains undigested and unabsorbed then enters into the large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine, है ना। large intestine का जो length है it is lesser than small intestine. Small intestine is big in length, मतलब is large in length then this large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है। बट वाई वी कॉल इट स्मॉल? बिकॉज इट इज़ इन द कॉइल फॉर्म एंड इट इज़ थिनर। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. Means जो इसने water को absorb किया, कुछ salt को absorb किया, and the remaining waste passes into the rectum, and rectum से वो anus में, and then the feces matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. Egestion means removing of the waste material from the body. This is we called egestion. तो एक बार मैं आपको बस फिर से थोड़ा थोड़ा explain कर देता हूँ। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो था आपका, हमने स्टार्ट किया फूड पाइप से। तो फूड पाइप में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि माउथ से जो फूड है वो आपका पास होता है फूड पाइप में, और फूड पाइप में कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या हमारे स्टमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, देन वी पास द फूड बैक टू गेट रिड ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम द फूड पाइप। द फूड पासिस थ्रू इन द स्टमक। स्टमक जो आपका यू शेप होगा, स्टमक आपका यू शेप होगा, और स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होगा, आपका जो म्यूकस सीक्रेट होगा, और आपके सम डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे। डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट प्रोटीन एंड म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, एंड हेल्प्स टू पास the food in the small intestine, and acid kills the bacteria and help in digestion also. Okay, then small intestine is around 7.5 meter, and it is in the coil form, or inner side there is some finger like structure in the small intestine what we call villi. Okay, villi increases the surface area for absorption of the food.
एंड विली में आपका सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेशन आपका लीवर से, और पैंक्रियाज दे आर टू ग्लैंड्स जहाँ से हमको सीक्रेशन मिलता है। लीवर से उसको बाइल मिलेगा, बाइल जाके गाल ब्लैडर में स्टोर होगा और उसका यूज़ होगा डाइजेशन इन फैट में। पैंक्रियाज का जो यूज़ होगा आपका वो होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में। ओके, और 4 आवर्स तक आपका स्टमक में था फूड। देन स्टमक डिस्कवर कैसे हुआ? ये मैंने आपको बताया था कि एक एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन नेम का कोई पर्सन था एंड ही वाज बैडली हिट बाय अ शॉट गन, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, विलियम बी मॉन्ट डॉक्टर के पास वो ले जाया जाता है। विलियम बी मॉन्ट saved his life, but he could not able to fill the hole of the stomach, and with the help of this hole, मतलब through this hole he could see what is happening in the stomach, and then he found that some churning process was going in the stomach, and then there are some acid also secretes। तो उसने स्टमक का थोड़ा वर्किंग वहाँ पर डिस्कवर किया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, एंड देन द फूड पासेस इन द ब्लड वेसल्स मीन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल एब्जॉर्प्शंस, एंड देन द फूड goes in different part of the body, and this process is called assimilation। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपका लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सॉल्ट एब्जॉर्ब होंगे, एंड देन जो रिमेनिंग वेस्ट जो बचेगा वो रेक्टम एंड देन एनस से आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो आज हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एंड उसके बाद आपका है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, आपको यदि कोई डाउट है कोई सजेशन है तो यू कैन गो इन द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।